السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج ہم اپنے شو کا آغاز کریں گے پارلیمنٹ کیفیٹیریا سے اور ہمارے موضوعات ہیں کرکٹ اور سیاست. کیا حال ہے چور صاحب آپ کا؟ تسی سناؤ بھائی جی، ٹھیک ٹھاک ہو؟ آپ کرکٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں یا سیاست کی؟ جناب میں دونوں دی کر رہے ہیں. اچھا، انہیں آگے کیوں بٹھائیے؟ کون ہو گئے؟ اے خالد لطیف ہے جی جوا کھیڑدا ہے. یہ جواری ہے جو؟ ہاں جی، اس لیے تھلے بٹھایا ہے. تے اے کرس گیل ہے، اے نہ ہوندا نہیں. اے سکور نہیں کردا، اس لیے تھلے بٹھایا ہے. ویسے آفرین ہے کرس گیل پر بھی کہ جب لاہور قلندر کی طرف سے کھیلا تو نہایت ٹھوس پرفارمنس. اب کراچی والوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے. ہن اس کنٹین تے روٹیاں بھی یہی لاندا ہے. اور جھاڑیے اور ملک دا نام بدنام کیتا ہور کچھ نہیں سی، اپنے لیڈر نال ویکھ لیندا. بھائی صاحب چپ کریں، کیوں دھیان پوا رہے ہو؟ ارے ویسے ظلم نہیں، کھلاڑیوں پر الزام لگے تو معطل، سیاستدانوں پر لگے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سیاستدانوں پر نہیں، حکمرانوں پر لگے تو. بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ عام آدمی میں اور حکمران میں کتنا فرق ہے. کیسا ملک ہے یہ؟ آفتاب صاحب ساری دنیا سے خلاف ہوئی جے. وہ کیسے؟ اب ملکہ حسن مارک علی اچھا، پناما چ نہ آیا ہے، اس کو تاج واپس لے لیا جی. اس نے خود واپس کیا ہے. واپس لیا نہیں گیا، اس نے خود والنٹیرلی واپس کر دیا. اور چلو نے کرتا تے نہ کو 4 فلیٹ نہیں واپس ہو رہے. بٹ صاحب چپ کر جائیں، کیوں اپنے نال نال مینوں بھی پارٹی چ کڈاونا جی. ملکہ حسن نے تاج واپس کر دیتا. جی جی جی. انہوں تنگ ہونا. تنگ نہیں ہوگا، اس کی غیرت اور حمیت نے گوارا نہیں کیا ہوگا. اور یہاں ایڈا کی مطلب ہے جی؟ اچھا سکور نہیں کردا، صفائی بڑی اچھی کردا ہے. ویسے یہ بڑی بد نصیبی ہے ہماری پبلک کی کہ ہم کرس گیل کی بیٹنگ دیکھ نہیں پا رہے. آدھا گھنٹہ یہ بیٹنگ کر جائے 100+ جا سکتا ہے. کیا بات ہے، آدھے گھنٹے دے وچ 50 سوٹ دھوتے نے. اور جڈی زور دی توڑیا سی 5 انہیں پاڑے بھی ہے. حاجی صاحب، آپ پارلیمنٹ کیفیٹیریا میں کیا کر رہے ہیں؟ اصل تے حاجی صاحب میرے گیسٹ نے. میں جدوں دا پیدا ہویا نا، میں چودھری دا گیسٹ ہوں. اس کے پیسے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ حاجی صاحب ایک غریب آدمی ہے. دے دے گا، ساری حکومت آ لین دے، بس آن والی ہے. آنے والی ہے؟ ہاں جی. یو وش. اور چودھری، حکومت آپ کس کی آنے والی ہے یہ کسی کو نہیں پتا. جی خان صاحب، آئی ہوپ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کی بھی نہیں آنے والی. میری تو شاید کبھی بھی نہیں آنے والی. میں نے مان لیا ہے آفتاب. آخر تے حکومت سٹ دیتی سی. خان صاحب بڑے کمزور سے لگ رہے ہیں. بیچارہ پرسوں تے بھوکا ہے. کیا بھوکا ہے، کھادا کچھ نہیں. ادوں میں نہیں نہ آئے نا. کون نہیں آیا؟ جہانگیر ترین تعلیم خان. اچھا جناب، جہانگیر ترین صاحب پتہ آج کل کدھر بیزی ہیں؟ کتھے جی؟ جنوبی پنجاب. بہت اہم کیس ہے ہائی کورٹ میں جس میں شریف برادران کی مبینہ شوگر ملے ہیں. عبد الرحمان صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور حکومت پنجاب نے کاٹن بیلٹ کو محفوظ کرنے کے لیے نئی شوگر مل پر پابندی لگا رکھی تھی. ٹھیک. شریف خاندان نے 3 شوگر ملز سینٹرل پنجاب سے اٹھا کر جنوبی پنجاب میں شفٹ کر دی اور اسے مبینہ کور دیا گیا پاور پلانٹس کا. اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 9 سٹے آرڈرز تھے، ان کی کوئی تعمیل نہیں ہوئی. اسی سلسلے میں جب یہ سپریم کورٹ کیس گیا تو انہوں نے پھر ریفر کیا اس کو ہائی کورٹس میں. اور اب سیشن ججز سے یہ رپورٹ مانگی گئی ہے کہ آپ جا کے پتہ کریں اگر واقعی وہاں پر شوگر مل موجود ہے اور فعال ہے، اسے فوراً سیل کر دیا جائے. لو فلیر صاحب دے سامنے شوگر ملاں بھی دینیاں پے جانیاں جی. بٹ صاحب آپ کے منہ پر ٹیپ لگانی پڑے گی. منتخب نمائندوں کے منہ پر ٹیپ لگانا کوئی اچھی بات، اور کوئی سزا دے دیں، ان کے فنڈز روک لیں. یہ ایک بہترین طریقہ ہے. 35 کروڑ روپے کا ترقیاتی فنڈ منظور ہوا ہے نارووال میں دانیال عزیز کی کانسٹیٹوئنسی کے لیے، اور حمزہ شہباز صاحب کا اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے منظور ہوا ہے 50 کروڑ کا فنڈ. واہ 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 واہ. پھر کہتے ہیں الیکشنز رگ نہیں ہوتے. ویسے انعام تو دانیال عزیز کا وزارت بنتا تھا، کم از کم وزارت دینی چاہیے تھی اسے. یہ 35 کروڑ تو ترقیاتی کاموں پہ لگ جائے گا. آفتاب، وہ تو غلطی ہماری تھی، ہم نے خواہ مذاق بنا لیا، ورنہ وزارت تو اس کو ملنے والی تھی. آلموسٹ مل چکی تھی، آلموسٹ. اس کی اور تلال کی وزارت یہ پکی نظر آ رہی تھی. اچھا کوئی کام کروانے تو کرس گیل ویل آئیے. ایک کراچی دی ٹیم تو میں خرید لیا ہوں. کس کام کے لیے؟ اسی کرس گیل دا ہن رچ بنوانا ہے. یہ سارے ہن گھر دی کام، میرے بچے بھی سکول چھڈ کے آئے گا. اور یہ بچہ نہ گیا تو انہوں ڈرائے گا. اے دیکھو نا کتنا معصوم بن کے بیٹھا ہے. کیوں بھائی؟ سر آپ مجھے وعدہ معاف گواہ بنائیں، میں ایک ایک کا بتاؤں گا کون کون جوا کھیلتا ہے. بھائی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ذلیل اور گھٹیا کام سے کہ کون کھیلتا اور کون نہیں.
तुम लोगों की वजह से क्रिकेट में इंटरेस्ट ही लूज कर गया। कैसा कैसा शानदार प्लेयर हमने जाया किया, किसी को जुए की वजह से और किसी को बदकिस्मती की वजह से। सईद अजमल देख लें, वो बेचारा कह रहा है मुझे कब टीम में शामिल करोगे जब मैं 50 साल का हूंगा। अपने सईद अजमल, पर तेरे 50 साल का तो तू पिछले साल था। गालिबन 150 साल का होएगा तो खेलेगा। नहीं यार, अगर मिसबा खेल सकता है तो सईद अजमल क्यों नहीं। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੰਜੋ ਦੌੜ ਦਾ ਹੜੱਪੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, अच्छा, ਮਿਸਬਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਸੀ। और माशाल्लाह वो भी एडा ही सी। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ। ये उसका कमाल नहीं है, ये कमाल उनका है जिन्होंने डेंटर पेलने की ट्रेनिंग दी है। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਖਾਂ ਹੁਣੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 50-50 ਡੰਡ ਲਾਦੇ ਨੇ हाँ जी, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧਾ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। यार मैनेजर वेटर कोई नहीं है इधर। नहीं है सर। वेटर, ਯੈਸ ਸਰ। ऑर्डर लो। अपने मैनेजर साहब, कोई बेटर लाइन क्यों नहीं कटते बहन होई ਤੁਹਾਡਾ? ਜਦੋਂ ਆਨੇ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ वेटर ਹੁੰਦਾ है। क्यों, तुम्हें क्या एतराज है इस पे? जी एक और वेटर भी है, वो लाहौर धमाके में जख्मी हो गया। बड़ा जुल्म है वैसे अफताब साहब। और देखें कैप्टन अहमद मुबीन, ऐसा शानदार अफसर बेचारा, उसकी नजर हो गया। अपना गोंदल साहब भी। जी 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 जी, कैप्टन साहब के महकमे का तो हमने पिछले हफ्ते तस्करा भी किया था कि ये जो बड़ी बड़ी ट्रॉलियां आती हैं, और हमने टेररिज्म की तरफ इशारा किया था कि हु नोज के इसमें क्या क्या छुपा कर लाया जाता है। कोई आपको चारा बताता है कि जी ये चारा लाया जा रहा है, कोई कहता है जनाब हम भूसा ला रहे हैं, कोई कहता है मिट्टी ला रहे हैं। भाई कैसे यकीन दानी हो आपको कि ये सारा कुछ ठीक है? आप इस काम को कुछ देर के लिए रोक क्यों नहीं देते या इसका हजम ठीक कर दें? आफताब साहब, आपको पता है कि धमाके के वक्त मैं चंद गज के फासले पे था। जी जी जी, मैंने पढ़ा है आपका बयान। आपने फरमाया कि बहुत करीब था मैं धमाके की जगह पर, बल्कि आपने कहा मैं ऊपर से देख रहा था। हाँ, मैं ऊपर से देख रहा था। ऊपर क्या कर रहे थे आप? ਇਹ ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਡਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਵੇਟਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ये कोई भूत ना है। अफताब साहब, ये पाकिस्तान वाला काम केड़े पासे तुर पिया? देखो ना, कुछ दिन पहले लाहौर च होया, उस तो बाद सेविंग शरीफ। ये गल 100 तो टप जाती है, इत्थे असर कुछ भी नहीं। भाई साहब, जब आप नेशनल एक्शन प्लान के साथ ये सलूक करेंगे तो फिर अंजाम यही होगा। मुझे तो यूं लगता है कि जैसे हमने नेशनल एक्शन प्लान को सिर्फ नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि बड़ा तरद्दुद करके, बड़ी मेहनत करके उसे सबोटाज किया, कि उससे जो कुछ हम हासिल कर सकते थे वो तो बहुत दूर की बात है, उसको काउंटर प्रोडक्टिव बनाने की बाकायदा कोशिश की गई है। और इसका खमियाजा ना सिर्फ इस हुकूमत बल्कि इस बेचारी कौम को भी भुगतना पड़ेगा। नहीं तो इन्होंने समझाना अफताब साहब कोई नहीं। आप समझा के देख लें। वो परसों तरसों एक कांस्टेबल बेचारे ने समझाने की कोशिश की थी बहावलपुर का, उसकी वो छितरौल हुई है, वो रो रहा है बेचारा। अच्छा, डीएसपी जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने उस बेचारे कांस्टेबल को मारा है, उसका अपना नाम है तुगरल जमीर, और क्या उसको पागल रहा है। नहीं तो हुण कहेंगे है कि इमरजेंसी ला के पनामा तो जान छुड़ा लांगे। इमरजेंसी लगाएं या ना लगाएं, ये भी एक नया कोई शोशा छोड़ दिया किसी ने, किसी बुजुर्ग महर ने ये मशवरा दिया है कि जनाब आपका मुल्क जो है इस वक्त जल रहा है, आप इमरजेंसी डिक्लेयर करें, आप फंडामेंटल राइट्स को कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दें। जितनी देर तक वो सस्पेंड रहेंगे, चाहे वो 6 महीने रहे, चाहे साल रहे, पनामा केस भी बंद रहेगा। लेकिन हाजी साहब याद रखें, इमरजेंसी और नो इमरजेंसी, अगर इस मुल्क ने ठीक होना है तो फिर मक रेकिंग होगी, ये गंद निकालने का प्रोसेस। अच्छा जनाब, आपके ताया अब्बू की बायोग्राफी छपी है, आपको चाहिए आप भी कुछ लिखें। आफताब साहब, मैं भी एक बुक लिख रहा हूँ। कौन सी बुक? चेक बुक। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਲਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜੇ। इधर आओ। ओ बैठे बैठे क्या हो गया, वो बेचारा गरीब आदमी है। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆ ਜਾ। इनका अंजाम बहुत बुरा है चौधरी, तुम देख लेना। और खान साहब, खुश रहा करो, कोई सैर सपाटा करया करो। ਤੁਹਾਨੂੰ स्विट्जरलैंड ना भेज दिए। अपने हर मुखालफ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੋ। हाँ भाई वेटर, तुम कहाँ जाना चाहोगे? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। कहा? ਜੱਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਜੱਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਬਈ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਯਾਰ ਕੀ ਇਧਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ,
ਸਕੋਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਕੀ ਲਏਗਾ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ जी ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी 15 तारीख से फिर शुरू हो गया। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਠੰਡ ਠੰਡੋੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। अच्छा जनाब हमजा साहब का तस्करा भी हुआ है अदालती कार्रवाई में। ओ की बेटा? जी सर अदालत ने पूछा कि 2 तालिब इल्म रहते थे लंदन में, जी जी। तो उनके पास 4 फ्लैट्स क्या कर रहे थे? अच्छा ये 4 फ्लैट्स तो हम समझते हैं, बीबीसी के मुताबिक ये 4 नहीं है 5 फ्लैट्स है। और सर जो 5वां फ्लैट है वो शायद 2006 में खरीदा गया था। इस बात पर सलमान अकरम राजा जो इनके वकील हैं उन्होंने ही फरमाया कि जी हो सकता है हमजा साहब भी उन दिनों वहां पे हो तो एक फ्लैट उनके जेर तसर्रुफ हो। और अदालत ने कहा जी आर यू श्योर कि वो वहां थे और ये फ्लैट वो इस्तेमाल करते थे? तो इस पर फिर मेरा ख्याल उन्होंने आए बाएं शुरू कर दी। ये 2 बंदे बड़ी आए बाएं शाएं कर दिया, वो कौन? एक राजा साहब थे, एक बुखारी साहब। और 2 लोगों के लिए 4 फ्लैट रखना, इतनी शाख खर्ची की क्या जरूरत थी? वाह वाह वाह। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, और बाकी 3 ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਖੋਲੇ ਸਨ। ਬਸ ਬਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਡਾਂਦੀ ਹੈ। रोके 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 ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੀ ਮਲਾਈ। ਉਹ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵਲਾਇਤ ਪਾਸ ਹਾਂ ਜੀ। ओए होए होए होए। ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ 5ਵੇਂ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਜੀ। मैनेजर मैं तुम्हें रोज कहता हूँ इसकी छुट्टी कराओ। ਉਹ ਸਰ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਫੀ ਏ। हाँ ये ना अखबार छपदा बद्दुआ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਜੇ। आफ्ताब तुमने इस दफा मेरी स्टेटमेंट नहीं देखी? इतनी शानदार बात कि 80 से पहले का हिसाब किताब इन्होंने पेश कर दिया है, बाद में यकायक पता नहीं क्या हो गया। ये बात कैसे सूझी आपको? ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੱਠਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਬਾਨੀ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। रजा रबानी को भी आजकल बड़ी तप है। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੌਲਵੀ हैदरी ਨੂੰ। रबानी साहब बहुत तपे हुए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी है उनका नाम। हाँ जी। लेकिन अदालत ने जो बेरर सर्टिफिकेट के बारे में बात की है वो बड़ी संगीन है। कि आप आए बाएं शायद ना करें, हमें कम से कम वो बेरर सर्टिफिकेट है वो तो दिखा दें कि उनके ऊपर कोई इंदराज है, कोई नाम है, कोई तहरीर है, कोई तारीख है। सर ये वाकई काफी संगीन बात है और इसका कोई जवाब नहीं इनके पास। ये केड़ी कोई ऐसी गल है, नवा जवाब आ जाएगा कतर तो। एक कतर दा शहजादा भी साडे वांगू वेला ही है, जो चीज मंगो दे दिंदा है। तू साडे ते फायरिंग ना करवा दे। अपने पुत्रे उरे आ, तेरा इन्हां नाल कोई जाती इख्तिलाफ है? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। इधर आ। यार ये आपको तो नहीं कह रहा भाई, ये मुझे ही कह रहा है। ऐसे ही आपको कह रहा है। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, मैं उठदा। अच्छा आपस की गल है, मैनू हमजा ने इशारा कीता सी इहनू घेर के इत्थे लिया। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी हुई है अदालत में कि अगर हुसैन नवाज चाहें तो 1 मिनट में केस का वाइंड अप करवा सकते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर दें। ਫਿਰ ਕੇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਾइंड अप ਹੋ जाना ਜੇ। ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਪੰਸਾਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ आजा नहीं आजा। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? अच्छा जी हमारी विमेन क्रिकेट टीम के कुछ मेंबरान हैं जो डमी म्यूजियम से आए। ਆ ਖਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ये दो जो किन्नू कहंदे हैं? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान क्रिकेट वुमेन जड़ियां ने ए दुनिया च अपना नाम पैदा करन? अभी परसों तरसों श्रीलंका ने आपका भुरकस निकाल दिया। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਆ ਪਿਛਲਾ ਮੈਚ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता? अच्छा कहना क्या चाह रहे हो, हर जगह लड़ने क्यों जाते हो तुम ये लोग? मेरे ख्याल तो पता लेना ही है। जी हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना वो है जी हमारे ठरकी सिलेक्टर्स। थोड़ी नजरसानी करें खातून, आप कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं? और की कवि है मियां साहब, धन ते कुकड़ियां तो वेल नहीं। अफ्ताब साहब गल कुड़ी दी काफी हद तक दुरुस्त भी है। इन्हें हैरासमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। ये जो मेल सिलेक्टर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, कोच हैं, अब उस हवाले से अगर आपके खिलाफ हैरासमेंट हो रही है, आप बातें रिकॉर्ड क्यों नहीं करती? आपके पास है ना, मोबाइल्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, आप बाकी हर काम कर लेती हैं, उसमें आप वो चीजें रिकॉर्ड किया करें ताकि सबूत के तौर पे पेश किया जाए। ये कैसे पकड़े गए आप जानते हैं? नहीं जी। सिर्फ इनकी कॉलें ट्रेस हुई हैं। आप भी ऐसी चीजें मीडिया को पेश करें, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन ये महज ज़बानी जमा खर्च जो है ना, हो सकता है आप गलत कह रही हो
हो सकता है आप अपना को गुस्सा निकाल रही हो ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੇ ਸਿਲੈਕਟਰ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ 70 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਕਤਾਂ 70 ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਾ ਤੇਰੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਮੰਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਕੀ? ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਖਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟ ਖਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੈਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थी। वेलकम बैक। नजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। वाह जी वाह, मेरा फेवरेट सेगमेंट सर। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟਾਂ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? यार क्या ऐसी क्या बात कर दी उसने? ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। होए होए होए। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ ਬਸਤੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ। अच्छा जी, लफ्ज है काबिलियत। काबिल होना, लायक होना। लायक फायक होना, माहिर होना, ज़हीन होना, हुनरमंद होना, लेकिन ये इसका मतलब गलत है। जी अच्छा सानू आस दुआ के ना एकदम पौड़ी खींचते लगे। इसका मतलब है आमद, किसी का आना, यानी वो दुबई से काबिल है। अरे को फिक्र है आप। सर अजीब जी गल है, दुबई तो काबिल का फासला दसिया जा सकता है। वो काबिल काफ किताब वाले से है, ये कलम वाले से है। काबिल यानी मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार दुबई से काबिल है, यानी दुबई से आया है। सर आया दी को और गल है, मेरे दोस्त दुबई से काबिल है। ये कहते हैं मेरा दोस्त बहुत काबिल है जी, यानी हर जगह पहुंच जाता है। काबिल नहीं वेला है। अच्छा, काबिल जदीद ये भी अरबी की इस्तिलाह है। नया आने वाला, नया आने वाला। मुस्तफा कुरैशी नहीं याद है? नवा है सोने। हाँ, असल वो काबिल जदीद कह रहे हैं। सर इन अरबी मुस्तफा कुरैशी की अक्सी नवा आया सोने। काबिल जदीद या जमील। तुसी मौला जट अरबी क्यों नहीं बुलाते? अच्छा जी, अब सवाल ये है। जी सर प्लीज, व्हाट अ वर्ड। थोड़ी देर बाद तू आखना वाटा को सुन। अच्छा, हुआ क्या होगा? हाँ ये बात है। जेड़ा मेरे दोस्त दुबईयों काबिल है ना उथे ही फसे है जी। क्योंकि जेड़ा दुबईयों काबिल सी ना उहदे समान चो चरस निकल आई है, वो उनके से काबिल नहीं रहा। सिचुएशन ये हुई होगी कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, उस हवाले से पंचायत बुलाई गई होगी, तो किसी ने पूछा होगा कि भाई काबिल का क्या बना, यानी चौधरी जो सुलह सफाई करवाता है, आने वाला काबिल, आने वाला, उसका क्या बना? तो सुनने वाले ने सोचा होगा कि ये जो सरपंच है, ये जो कोई बड़ा लीडर है इनका, वही काबिल है, उसी का जिक्र हो रहा है, वही सबसे अहम है। जो सुनने वाला है ये किधर मेरे हथी चढ़ सकता है? ये हर बारी गलत ही सुनता है। ये कोई मस्त है, हर गल का अपना मतलब कर लेंदा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। ये बहुत सारी तहरीफात हमारी लैंग्वेज में, बहुत सारी डिस्टॉर्शंस, तोड़ मरोड़, ये सुनने वाले की हमाकत का शाखसाना। उन कहना है ये जो बाहरों आवे काबिल आ रहा है, वो भावे वापस मुड़ जाए। नहीं नहीं, जो खराबी, जो गलती हो चुकी है, इसे हम कंटिन्यू करेंगे ता वक्त के वो अल्फाज ऐसे हों जिनकी सैंक्टिटी बहुत है, मतलब है आपके मजहब से, दीन से और कुरान पाक से उसका ताल्लुक है। अब काबिल से अगर आप देखें तो इस्तकबाल उसी फैमिली का वर्ड है। इस्तकबाल आने वाले का करते हैं ना, वेलकम। कि जाने वाले का करते हैं? हम तो जाने वाले क्या करते हैं, खर्चा ये ना हो जाता। इस्तकबाल, अहलन व सहलन, मरहबा, जी आया नू, वेलकम, स्वागत आपका। दुबई किधर मंगते तो नहीं रहे? अच्छा जी, इस हवाले से मैंने आपको एक फार्मूला बताना था जिसे मीम का फार्मूला कहा जा सकता है, लेकिन नासिर चुनियोटी की अदम दिलचस्पी की वजह से मैं अवॉइड कर रहा हूं। बड़ी मेहरबानी सर। नहीं सर प्लीज बताएं। सर प्लीज बता देना। हाँ सर, वाह वाह वाह, वाह वाह, हलवा आ गया आगे। देखो सारे कहने लग गए। सिर्फ तेरी वजह तो हो रहा है। सर प्लीज बताइए। ये जैसे काबिल है ना, काबिल जी काबिल आना, तो इसको अगर आप मीम का फार्मूला अप्लाई कर लें, यानी लफ्ज से पहले मीम, काबिला, मुकाबला, तो इससे दो का कॉन्सेप्ट उजागर होता है, दो का। वाह, जैसे मद्दे मुकाबिल है, मुकाबिल में भी मीम आ गया ना जी। काबिल, मुकाबिल, मुकाबिल। ठीक सर। मुकाबिल डेफिनेटली किसी का होगा,
यानी एक आ रहा है ना तो दूसरा उसके मुकाबले पे आ रहा होगा, मतलब बहस। मुबाहिसा, मीम लगा दे तो मुबाहिसा। बहस एक बंदा कर सकता है, मुबाहिसा अकेला नहीं करेगा, दो होंगे। वाह जी वाह। हिसाब, हाँ हिसाब एक आदमी का है। मुहासबा ये एक से जायद है, दो है यहाँ। सबसे दिलचस्प है इसमें सफा। सफा सफा ये हथेली, एक हथेली, दो हथेलियां, मुसाफा। मुसाफा करना। अच्छा जी, एक लफ्ज है सानेहा। सानेहा क्या है जी? ट्रेजिडी। सानेहा दरअसल खुशगवार वाक्य को कहते हैं। जी ये सानू मरवाना चाहते ने। सर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ? क्या कहा था? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। खैर बरकत वाला वाक्य, भलाई वाला वाक्य, खुशगवार वाक्य। सानिया की जमा है सवाने। सवाने हयात, जिंदगी के दिलचस्प और खुशगवार वाकयात का मजमुआ। मतलब किसी शादी होते कार्ड उत्ते लिखा हुआ है कि 22 तारीख को मेरा साने है। वैसे ये तो अदरवाइज भी कहा जा सकता। हर अच्छी चीज के लिए सानेहा और बुरी चीज के लिए बारहा इस्तेमाल होता है। बारहा, बारहा। अच्छा मेहमान हो ना, प्यारा मेहमान, आपकी तबीयत के मिजाज के मुताबिक मेहमान, उसको आप कहेंगे सानेहा। मेरे यहाँ सानेहा आया हुआ है। मेहमान चपेट मारे आके। और अगर कोई फजूल आदमी है तो कहे यार बारहा है, वो आया हुआ है मेरे यहाँ। सर आज का शेर तो इनायत करें। हाँ जी, आज का शेर दरअसल ये हफ्ता वो है जिसमें गालिब की बरसी, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की बरसी, और 148वीं बरसी है। तो आज पहली दफा मैं गालिब का शेर पेश करूंगा, और देखिए क्या लुत्फ सुखन है और क्या शरारत है उसमें। इरशाद, वो कहते हैं कि कभी जो याद भी आता हूं मैं तो कहते हैं, कभी जो याद भी आता हूं मैं तो कहते हैं कि आज बज़्म में कुछ फितना और फसाद नहीं। वेलकम बैक। ख़ुवातीन और हज़रात, आज की फिल्म है नौकर वटीदा। नहायत शानदार कंपोजिशन वजाहत अत्रे की, लिरिक्स हैं ख्वाजा परवेज, गाया मसूद राना ने, पेश करने जा रहे हैं बब्बू राना। नी चुप कर दड़ वट जा, नी चुप कर दड़ वट जाना, इश्क दा खोल खलासा। चुप कर दड़ वट जाना, इश्क दा खोल खलासा। नी चमड़ी लथ जाऊगी, नी चमड़ी लथ जाऊगी, लथ जाऊगी, नी चमड़ी लथ जाऊगी, एवें बन जाएगी जग दा हासा। चुप कर दड़ वट जाना, इश्क दा खोल खलासा। गुमसुम रहना, कुछ ना कहना, इश्क दाए दस्तूर। गुमसुम रहना, कुछ ना कहना, इश्क दाए दस्तूर। सस्सी सोनी सहती वांगू होवी ना मशहूर। नी चुप कर दड़ वट जाना, इश्क दा खोल खलासा। चुप कर दड़ वट जाना, इश्क दा खोल खलासा। बुलियां सी ले करना है जे तू सजना नू राजी। ओ बुलियां सी ले वेखी किधरे रौला पाके हार न जावी बाजी। नी
चुप कर दड़ वट जाना इश्क दा खोल खलासा चुप कर दड़ वट जाना इश्क दा खोल खलासा जिस दिन खेड़ा लाड़ा बन के चूचक दे कर आया जिस दिन खेड़ा लाड़ा बन के चूचक दे कर आया जिस दिन खेड़ा लाड़ा बन के चूचक दे कर आया रांझे हीर दे पैरी डिग के बड़ा सियापा पाया रांझे हीर दे पैरी डिग के बड़ा सियापा पाया मापिया दी लज तेथों प्यारी हीर ने ए फरमाया नी चुप कर दड़ वट जाना इश्क दा खोल खलासा चुप कर दड़ वट जाना इश्क दा खोल खलासा नी चमड़ी लथ जाऊगी नी चमड़ी लथ जाऊगी एवें बन जाएगी जग दा हासा चुप कर दड़ वट जाना इश्क दा खोल खलासा गुड, वेरी गुड। वेलकम बैक जी। खबर है कि वैलेंटाइंस डे पर पाबंदी ने खान साहिबान के तमाम ख्वाब चकनाचूर कर दिए। अरे बाबा अच्छा, इसका एक अलाप नुसरत फतेह अली खान का हिट क्या हो गया है? अब ये गुफ्तगू का आगाज ही अलाप से करता है। पुरीले लोग हैं, ये आप ही कोट पारदर है ना, थाने भी दावत दे दिया कर। भाई को अगर आप गौर से देखें तो छोटा सा 12 सिंगा भी लगता है। तो मैडम का कई पेशे खिदमत है, इजाजत है। तो मेरे को इजाजत है, तेरे अब्बा लगता है। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। मैं आपको बताऊं ये शनाख्ती कार्ड जो बनता है इसमें लाइनें क्यों लगती हैं? भाई को शनाख्ती कार्ड बनवाने में बड़ी प्रॉब्लम हुई। क्यों? वो 5-7 घंटे लग गए। क्या वजह क्या हुई? डॉक्यूमेंट्स तो 15 मिनट में ही हल हो गए थे। अच्छा, तस्वीर खिंचवाने में कुछ 4-5 घंटे लगे। कैमरा खराब था? नहीं, भाई का मुंह खराब था। ये मुंह कहीं टिका ही नहीं रहा था, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। इन फिर कैमरे वाले ने मान लिया। अच्छा, ये बताएं कि वैलेंटाइंस डे ना मनाए जाने का आपके ऊपर बुरा असर कैसे पड़ा? बात दरअसल ये है कि वो महफिलें हमारी जो निजी होती हैं वो कैंसिल हो गई हैं। नहीं, उन महफिलों में आप गाते हैं? लाहौर में मोती हार बेचना। भाई बड़ा गुस्सीला है और मुझे लग रहा है कि आज बहुत मार खाएगा। अच्छा, मैनू कुछ ना कह, वो शिकारी भाई है, उन्हें सानू तितरा को कुटना है। असल में भाई ने आज मेरा कुर्ता पहना हुआ है। बिजली की वजह से मुझे इसका कुर्ता पहनना पड़ा है। बिजली का क्या ताल्लुक है कुर्ते के साथ? इस्त्री मेरे प्यो ने करनी थी। पिछले दिनों मेरा फोन चोरी हो गया। अच्छा, मैंने भाई में सिम डाली हुई है। भाई के सिग्नल बड़े तेज हैं और ये मुंह बनाता है ना, इतना नंबर डायल होने लगे। हमें वो सुनाओ फिल्म अनवरा का गीत। जी, अनवरा का कौन सा? बलोरी अखवालिया? तेनू बड़ा पता है, तू सैंड में समोसे तो नहीं बेचता रहा? सुन में बलोरी अखवालिया हंसा दिल तेरी डल डालिया, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन चलो। सुन में बलोरी अखवालिया हंसा दिल तेरे नल लाल। ओए नाचिया, एडी मुश्किल काम मिलता है विच डांस पा देने। भाई का स्टेप भी अच्छा है।
भाई बड़ा है, मैं इसका एहतराम करता हूँ, अच्छी बात है। आगे से कुछ नहीं कहता, कभी कभार 2-4 चित्र मार देता हूँ। क्या करता हूँ? चित्र मार देता हूँ, दरख्त के साथ बांध दिया, उल्टा लटका दिया। भाई उल्टा बहुत अच्छा लटकता है, पूछल दे नाल पूछल नहीं होती। अच्छा इस भाई नो हर चीज बना के दसनी पैंदी। तो हंसे जाने समझ भी आती पी हो कि नहीं? हाँ जी, मुझे समझ आ। भाई की क्या तारीफ करूं, भाई किसी तारीफ के काबिल नहीं है। क्यों? बहुत घटिया है। भाई को ये बड़ी बुरी आदत है, मेरी जराबें पहन के चला जाता है अक्सर, और ये जराबें पहनता, बूट नहीं पहनता। बाजार चला जाता है ये। एक दिन भाई जल्दी में था, नहा के बाहर निकला, सिर्फ जराबें पहनी और निकल गया। वो तो फिर मैं दरवाजे से वापस लाया, मैं कहा भाई पतलून तेरे प्यो ने पानी। भाई बड़ा मनहूस है। भाई अखबार बहुत पढ़ता है, महीने च एक अखबार खरीदता है, उन्होंने 6-7 साल पढ़ता रहता है। भाई असल में अमीर आदमियों की तस्वीर देखता है, अच्छा, और तस्वीर में से उनकी जेब काटने की कोशिश करता है। बाज़ औक़ात कामयाब भी हो जाता है। यकीन करें, उन जेड़ा भी फोटो लो आंदा है, इंज लो आंदा है। भाई को इंग्लिश फिल्में देखने का बड़ा क्रेज है। अच्छा, राजन मोर जो है राजन क्या होता है अब वो जो 007 में हीरो था, रॉजर। चलो मेरे वाले हर पा दो। भाई सिर्फ वेस्टर्न म्यूजिक पसंद करता है। क्या बात है। जब भी सुनता है एल्विस प्रेस्ली को सुनता है, बीजीज को सुनता है, अकरम राय को सुनता है। बीजीज से तो इतने 2-3 सूट भी सिलवाए हैं। बीजी सुना माशाल्लाह बड़ी अच्छी टेलर है वो, और बीजी, वो बीजी हैं, बीजीज नहीं। पता नहीं फिर उन्होंने को गाने सुनता रहे, वो सूट सुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई को मूवीज देखने का बड़ा शौक है। अच्छा, मुझे तो ऑफर हुई हॉलीवुड से, कैसे ना आया कर। हमें बताया इनको, वो जीना लोलो बर्रीडा वो मेरे साथ किस तरह काम करना चाह रही थी। हंचबैक ऑफ नॉटर डेम में जीना लोलो के साथ उन्होंने काम किया था। बतौर क्या? हंचबैक। वो कुबड़ा आशिक नहीं था, वो भाई था। भाई जरा साहब नु कुबा हो के बखाई। भाई ने जो मंगे कुबा हो के मंगे, उसे कभी देखो लारी अड्डे एडा सोना कुबा बनता। फीस नु मिली $10,000, मंगे वाले ने $1,00,000। फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई, ये उसे कुबड़ा बन के 6 साल मांगता रहा। मेरा ख्याल है तेनू मैं सुडान दे ट्रिप विचों मिस कर दिया। ओहो, सुडान चले हो तुसी? हाँ यो थे हबशी नु डरावना है। एक दफा सुडान एयरपोर्ट पे हम लोग खड़े, एक हबशी के साथ। सुडान एयरपोर्ट क्या? क्यों सुडान एयरपोर्ट नहीं होता? खरतूम को ना, खरतूम एयरपोर्ट। ये खरतून मेरे मुंह से नहीं चढ़ता। वहाँ भी एयरपोर्ट पे फिर रहे थे हम लोग। अच्छा, भाई की एक हबशी के साथ झड़प हो गई। अच्छा, गुस्सा चढ़ गया भाई को। अच्छा, ओ मारिया इसने, उसने, और सिर्फ मारिया नहीं, उन्हें बने अभी। और हबशी एडा गुस्से च पागल हो गया सी, उन्हें रसा ने लबे मैं ले आके दिता। यार गाना क्यों नहीं सुना रहे हो तुम? हौली बोल, सारा तबला पाड़ नहीं। चलो यार सिलसिला शुरू करो, मैनू तो को पागल लगता है। ये मुझे कह रहे हो? नहीं एवं जरा मोहब्बत से। बड़े डर तो साढ़े म्यूजिशियन पर भी घबरावे ने। वो किधर है जो पहले म्यूजिशियंस थे तुम्हारे? उन्होंने भाई ने बाहर बने हैं। भाई बचपन में स्कूल जाते हुए चकी वाला दुम्बा बन जाता सी। वो कैसे? पीछे बस्ता पा के भाई स्कूल पढ़ने से ज्यादा ਇਹਦਾ चोरी का काम बहुत सी। किसका? चोरी का। ये बच्चों को लोग गन पॉइंट से किताबा खोल लेंदा सी, उस बाद वही किताबा प्रिंसिपल को भेज देता सी। स्कूल में नान टिक्की भी लगाता था, एक नान टिक्की। जी हाँ, वो आप ही खा लेंदा सी। भाई को असल में फिशिंग का बड़ा शौक है। अच्छा, भाई अक्सर दरियाओं में छपड़ों में फिशिंग करता है। एक दफा कुंडी ला के बैठा सी, भाई नु वेख के फिश ने अंदरों कुंडी ला ली, और भाई नु 5-7 जुगता भी की थी। फिश ने? हाँ जी, जुगता पेशे खिदमत। क्या तेरा बेकार बम्बर का मुंह है, 2 जुगता करके नालो आठा भी बनाती सी। आफ्ताब भाई, अगर मेरे बारे में मालूमात मुकम्मल हो गई है
जैसे गाने में ले आइए। जी जरूर जरूर, बिस्मिल्लाह। एक तारा जया चन वाले तक हाँ हाँ, मास्टर अब्दुल्ला। एक तारा जिया चन वाले तकदा वे, एक तारा जिया चन वाले तकदा वे, तकदा वे नाले झकदा वे, एक तारा जिया चन वाले तकदा वे। जे जिंदड़ी नू कंडे लगे प्यार के, भुला जे जिंदड़ी नू कंडे लगे प्यार दे, दिल जे ना हुंदा बल्ले ये असी हार दे, दिल दे के ते कुछ भी नहीं बचदा है, तारा जिया चन वाले तकदा है। मैं आपको बताऊं, ये गीत जो था, ये मास्टर साहब की क्या टोन थे, उन्होंने खुद हमें दाद दी जब हमने ये गाना सुनाया उनको। मास्टर अब्दुल्ला ने? नहीं, वो साढ़े अपने पिंड का मास्टर सी। यकीन करें, मुझे वो ईद का समय याद आ गया। एक दफा बकरा ईद पे भाई ने मुझे भेज दिया था। वो कैसे? धोंधा करके ये थे अब्बाई ने भी बेचने लगा से, फिर वो सौदा कैंसिल हो गया। वो क्यों? उन्होंने कहा असी छगा नहीं लेना, इन्हें फिर दादा भेज दिता खीरा कह के। कैसे? खीरा कह के, असल च दादे दे मुंह च दंद कोई नहीं सी, और जिस उम्र च दादाजी पहुंच गए सन, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਖੀਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ। वो कैसे? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।